Um, it is a remembrance service for Tubby, but at the same time, it's the day of Pentecost when the Holy Spirit came, or church ka birthday tha aaj. Today, the church was birthed. So we will have a section for Tubby after the message, and we will hear from the Grover family. तो जो भी लोग आज उनकी सपोर्ट के लिए आए हैं, let's give them a big hand. You are welcome. This is our church family, और आपका बहुत बहुत स्वागत है. Thank you for coming to support. I know it has been a very tough time for them, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए हैं. You see, today is the day the helper was revealed. हमें सबको help की ज़रूरत है. I think especially in foreign countries, India, Pakistan, Fiji में we all have big social networks. You know, हमें neighbors भी जानते होते हैं, पड़ोसी और अपने relatives, extended families. People don't have lack of social help. But especially in foreign countries, people actually need help and guidance. But irrespective of whichever country you are in, we all need spiritual help. And today is the day when the helper was revealed. ये significant day है church के लिए, क्योंकि आज के दिन में परमेश्वर का आत्मा कलीसिया पे उतरा. मैं आपको Acts 2 में वो पढ़ के बताता हूँ. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly a sound like a blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. तभी अचानक वहां आकाश से भयंकर आंधी का शब्द आया और जिस घर में वे बैठे थे उसमें भर गया. They saw what happened to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. और आग की फैलती हुई लपटें जैसी जीभें वह सामने दिखाई देने लगी. वह आग भी विभाजित जीभें उन पर हर एक पर के ऊपर टिकी. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. वे सभी पवित्र आत्मा से भावित हो उठे और आत्मा के द्वारा दिए गए सामर्थ्य के अनुसार वे दूसरी भाषा में बोलने लगे. You see, first of all, इस पैसेज में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा उतरी. But the first thing that happened is they were gathered together. They were all together in God's house. You know, God is always with us. जब परमेश्वर के लोग इकट्ठा होते हैं, जैसे मैं कह रहा था कि 2 या 3 जहां पर मौजूद होते हैं वहां पे यीशु प्रेजेंट होता है. So it is a blessing when people reside together, when people dwell together, when people gather together. और especially जब हम परमेश्वर के नाम में इकट्ठा होते हैं, it is no longer a normal meeting. जब परमेश्वर के लोग इकट्ठा होते हैं, they can be a mighty rushing wind. They can be tongues of fire which can be revealed. आप देखिए उस टाइम में जो कार्य हुए वो आज भी होते हैं. हमारे बीच में कई लोग ऐसे हैं जिनके कैंसर तक ठीक हो चुके हैं. And some people might come and say that's humanly impossible. Yes, it is, but it is possible with God. It is possible with God. I'm reminded of a story which once Ehsas brought one of her friends whose mum was struggling with cancer. And we prayed for her. और फिर एक दिन हम एहसास और पार्थ को मिले और हम रबड़ी फलूदा खाने गए हुए थे. What a spiritual thing to do. As you do as Punjabi, you have rabdi faluda. It's my favorite dessert. Nothing wrong with that. रबड़ी फलूदा हम खाने गए. रबड़ी फलूदा खा के हम बाहर निकले और किसी ने एहसास की नंबर प्लेट पढ़ ली. एहसास वो आ गई, उसकी फ्रेंड आ गई. वो कहती I got prayed for at church and मेरी लाइफ बिल्कुल नीचे जा रही थी और प्रार्थना के बाद वो ऊपर जाने लगी. Correct? There have been so many things which have happened here which are beyond human explanation, and that is a proof that God is alive. He's not a dead God.
वो ऐसा खुदा नहीं है वो जो मर गया, वो ऐसा खुदा नहीं है जो एक बुक में स्टोरी में खत्म हो गया. He is a God who loves you today. He is a God who wants to help you today. He is a God who's alive. तो Pentecost के दिन में tongues of fire came and people started to speak in different languages. Now this is where I feel that signs and wonders are a proof that God is alive. जब परमेश्वर के घर में चिन्ह चमत्कार होने लग जाते हैं, one, it boggles people's mind because they're like, ये कैसे possible है? That is the whole purpose of signs and wonders, that it is not possible with humans. And it gets people's attention. और लोग कलीसिया में आने लग जाते हैं क्योंकि उनको लगता है यार, we can try and hold events, we can do things कि अच्छा जी आज हम फ्री में लॉलीपॉप बांट रहे हैं, आज हम फ्री में कुछ और कर रहे हैं, we do this event and yes, all those things are wonderful. We even do that as a church. But imagine if people in the community find out there are things happening here which are beyond human explanation. We don't even need to invite them. They would come. जब लोगों को पता चलेगा that there are things happening in this people group which only God can do, they would say, I want to meet this God. And that is what Yeshua does. That is what Christ does, as He does things amongst us which only He can. And He's a helper. Holy Spirit जो है वो हमारी मदद के लिए है. When the Holy Spirit comes, things happen which only He can do. अब देखिए, I'll just share a photo. Tanish, have you got that picture? I just want you to see this one picture, and I want you to tell me if you recognize this image. किसको पता है ये लेफ्ट में बंदा कौन है? Who knows? Yes भाई, मोहम्मद अली. वो दूसरी पिक्चर कौन सी है? His famous dialogue, float like a butterfly, sting like a bee. Now let's go back to the old image. Now सबको मोहम्मद अली का पता है. He was a famous boxer. People know him. But किसको पता है Angelo Dundee का? Does anyone know about Angelo Dundee? One person knows. 99% don't know. Angelo Dundee was his trainer. मोहम्मद अली को बनाने वाला वो बंदा था. He was the guy who was in his corner. वो उसका helper था. You see, in this life, we have to fight in the ring. Life में मुश्किलें आती हैं. Grover family की life में अभी मुश्किल आई है. Yes, people will visit them. They will comfort them. They will text them. They will call them. They will bring them presents. But ultimately, ring में उनको ही लड़ना है. After a few weeks, they are the ones who have to fight in the ring. And it doesn't matter what you're going through. It matters who is in your corner. विनीत भाई, welcome. मेरे को विनीत भाई को देख के उनके बेटे की स्टोरी याद आ रही है, where we had a celebration service for him. He had God on his corner. परमेश्वर ने उनकी मदद की, उनके बेटे की मदद की, और उनका बेटा खुद आके माइक में बोला. मेरे को अभी भी याद है, कह रहा था मैं बिल्डर बनना चाहता हूँ, कुछ ऐसे बोला था ना. I remember him speaking that, you know, God helped him. Man, I saw him because I prayed for him on the video. My goodness, it looked like an impossible situation. But God can do things which are beyond human explanation. जहाँ पे डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं, जहाँ पे लोग कहते हैं कि भाई बस इससे आगे खुदा ही आपकी हेल्प करे. Yes, He does help you. So it doesn't matter what kind of fight you're fighting, किस तरह की बॉक्सिंग मैच में हो और किस तरह का अपोनेंट आप फाइट कर रहे हो. It matters who is in your corner. तो जब पवित्र आत्मा आई
वो हमारे एक हेल्पर की तरह आई। एंड वी ऑल नीड दैट हेल्पर, बिकॉज लोगों को ज्ञान की जरूरत नहीं है। अब 2 घंटे इंस्टाग्राम पे बैठ के रीलें देख लो, आप पता नहीं किसी भी टॉपिक पे आप सबसे बड़े ज्ञानी बन जाओगे। आजकल तो जेन जी, जेन अल्फा के साथ आप बात नहीं कर सकते, उनको ऐसी चीज़ों की नॉलेज है जो हमें पता ही नहीं है। वो कहाँ से आई है उनको नॉलेज? सब इंटरनेट से इकट्ठा किया हुआ है। तो चैट जीपीटी खोल लो, कुछ भी खोल लो, 2 सेकंड में आप मास्टर बन जाओगे किसी भी चीज़ के। सो पीपल डोंट लैक इंफॉर्मेशन, दे लैक रेवलेशन, दे लैक विजडम। लोगों के पास नॉलेज बहुत है, भरी पड़ी है लोगों के अंदर नॉलेज, बट पीपल आर स्टिल लॉस्ट बिकॉज पीपल डोंट हैव डायरेक्शन। कहां पे किस चीज को फॉलो करें? एक दिन ऐसे लगता है कि ये बंदा सही है, दूसरे दिन ऐसे लगता है दूसरा बंदा सही है, तीसरे दिन ऐसे लगता है हाँ जी आपकी भी बात सही है। हमारे कल्चर में तो एडवाइस ही इतनी मिलती है, कई बार हम मांगते भी नहीं फिर भी मिल जाती है। बुआ, फुफ्फड़, मासी, मासियाँ, मासड़ सारे डॉक्टर बने होते हैं इंडिया में, आपको पता है ना। सब 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 हर चीज में प्रोफेशनल है। बट देयर आर पॉइंट्स इन आवर लाइफ वेयर वी डोंट नीड इंफॉर्मेशन, वी नीड विजडम। और जब परमेश्वर का आत्मा हमारी जिंदगियों में आता है, ही स्टार्ट्स टू एक्ट एज अ GPS। जब होली स्पिरिट हमारी लाइफ में आती है, आप उसके मंदिर बन जाते हो। परमेश्वर का वचन कहता है मैं मंदिर हूं तेरा। माई बॉडी इज अ टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट लुक इनसाइड। आप देखिए रिलीजियस प्लेसेस में हम जाते हैं, कई बार हम पैर धोते हैं, है ना। इट्स अ गुड थिंग बिकॉज दैट शोज रिस्पेक्ट फॉर द प्लेस। इट इज़ अ गुड थिंग क्योंकि हम बाहर की गंदगी अंदर नहीं लेके जाएंगे ताकि जगह साफ रहे। या चप्पलें बाहर उतार के जाते हैं, कुछ ना कुछ वी डू थिंग्स टू रिस्पेक्ट द प्लेस। आमेन, सबको पता है ना। बट द बाइबल सेज योर बॉडी इज अ टेम्पल। आपकी बॉडी ही पवित्र आत्मा का मंदिर है। And what sort of things do we put in our body? Do you put things of lust? Do you put things which are of sexual sin? Do you put alcohol, drugs? जो चीजें पवित्र आत्मा को ग्रीव कर सकती हैं, क्या आप उन चीजों को अपने मंदिर में डालते हो? You see, we are so careful of physical buildings. हाँ जी, चर्च में आए, आज बिल्कुल अच्छे कपड़े पाके आएंगे, पूरा बढ़िया बन के आएंगे कि सबको लगे हाँ जी बहुत धार्मिक है हम। God doesn't care if you come in चप्पल। अब चप्पलों में आ जाओ, निक्कर में आ जाओ, साफ मन से आओ। That's all God cares about. आप इमेजिन, मेरा बेटा संयम यहाँ पे खेल रहा है, 2 साल का हो गया ये, 2 years and 2 months, 1.5 months. And now as a father, imagine अगर मैं इसके लिए ऐसे रूल्स रखूं which are impossible to follow। मैं इसको कहूं बेटा आपने मेरी हुजूरी में आना है ना, कोट पहन के आओ। बेटा बोलो फादर इन द नेम ऑफ जीसस आई कम, एंड फादर फॉरगिव मी फॉर आई हैव सिन्ड ग्रेटली। और कई बार हम परमेश्वर के साथ इतना प्रोफेशनल बिहेव करते हैं, as if he is a God who is super distant, है ना। इसको मैं यहाँ पे 1 मिनट जी, हाँ बस ठीक है। But he doesn't care about religion। परमेश्वर ने कभी बाइबल में ऐसा नहीं कहा कि I have come to start a new religion, मैं कोई यहाँ पर क्रिश्चियनिटी नाम का धर्म शुरू करने आया हूँ। अगर आप बाइबल पढ़ो, अगर आपको ऐसा कोई वचन मिल जाए, मैं छोड़ दूंगा मसीहत को, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। All these are narratives which get floated। मेरे बेटे को किसने सिखाया प्यार करना? वो कोई प्यार की यूनिवर्सिटी में गया है, उसको कैसे पता है अपने पापा को कैसे प्यार करना है? And he just knows how to love। He just knows। तो हमारे अंदर जो सिस्टम लगा हुआ है
वो इसलिए लगा हुआ है दैट वी कैन बी कनेक्टेड टू गॉड, और अगर हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट होंगे वही हमें सच में सेटिस्फैक्शन दे सकती है. एंड वन थिंग दैट सेपरेट्स अस फ्रॉम गॉड इज सिन. जो पाप है हमें परमेश्वर से दूर करता है. वी कैन बी लिविंग अ लाइफ व्हिच इज filled with lots of material blessings. We can be blessed financially. We can have the best careers, the best business, the best customers. We can drive the best cars, live in the fanciest homes. But अगर हमारे अंदर पाप है, the Bible says, all have sinned and fallen short of the glory of God. हर किसी ने गुनाह किया है और हर एक परमेश्वर से परे है. कोई ऐसा नहीं कह सकता भाई मैं अच्छा बंदा तो अच्छा हूं बट थोड़ा सा झूठ बोल लेता हूं. वो कहते हैं ना, जैसे आप डिनर कर रहे हो, आप बड़ी स्वाद दाल मखनी खा रहे हो, उसमें बस थोड़ा सा पॉइजन डाल लिया. बाकी दाल तो बड़ी अच्छी थी, दाल मखनी बाकी बड़ी स्वाद थी, वो थोड़ा सा पॉइजन खा लिया बीच में, कोई बात नहीं. डजंट वर्क लाइक दैट. If we want to connect to a God, अगर हम अपने क्रिएटर से कनेक्ट करना चाहते हैं, and I'm not talking about a religion, this is all spiritual things. For one, एक भी बार मैंने आपको नहीं कहा कि you should become a Christian. If we want to connect to a God who is so holy, who is so pure, who created this world, we have to match that standard. अब परमेश्वर के घर में आप चप्पलें पा के भी आ सकते हो, बट इमेजिन गोइंग इनटू द व्हाइट हाउस, इमेजिन गोइंग टू मीट किंग चार्ल्स. यू कांट गो चप्पल में. वो आपको एक दिन पहले ब्रीफिंग देंगे. अगर आपको क्वीन को मिलना है, क्वीन तो नहीं है अभी, किंग को मिलना है, उसके कई कायदे होते हैं कि आपने इस तरह हाथ मिलाना है, आपने इस तरह बाव करना है, आपने इस तरह चलना है, आपकी बारी इस टाइम पे आएगी. देयर आर ऑल दीज प्रोटोकॉल्स which involve meeting a royalty. तो अगर दुनिया की रॉयल्टीज के इतने कायदे हैं, imagine a God who is the King of Kings. वो बादशाहों का बादशाह है. हम उसको ऐਵੇਂ ही नहीं मिल सकते कि हम अपने मन में जो मर्जी रख लें, अपने मन में हम जितने मर्जी पाप लेके घूम लें और यस परमेश्वर मेरे को माफ कर दो, बस ठीक है जी, हो गया जी, चलो नमस्कार, आगे बढ़ो. You need your sins forgiven. We have to repent of our sins, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, जो कि पतरस ने भी उस दिन प्रीच किया पेंटेकोस्ट के दिन. There are things which will separate you from God. There are things of the flesh like witchcraft, sexual sins, fits of rage, drunkenness, selfish ambition, envy, jealousy, and the list goes on. ये पापों से हमें पश्चाताप करने की जरूरत है. एंड अगेन, दिस इज नॉट अ रिलीजन. पीपल एक्चुअली वॉन्ट रिलीजन, यू नो. लोगों को धर्म चाहिए, क्योंकि धर्म उनके लिए ये है कि अच्छा जी, अब मैं अपनी 2 घंटे रिलीजियस ड्यूटी कर लूं, बाद में मैं अपनी लाइफ जैसे मर्जी जीऊं, तब मेरे को कुछ मत बोलना. इवन यू कैन बी सिटिंग इन अ चर्च for all your life and you might not have a relationship with God. आप सारी जिंदगी चर्च में बैठ सकते हो और आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं हो सकता, और नाम आपका हो सकता है मैथ्यू जॉनसन. डजंट मैटर. कोई राम लाल होएगा, उसका अगर दिल से विश्वास होएगा, वो कनेक्ट हो सकता है. ऑल दीज थिंग्स आर ऑल मैन मेड. कि हाँ जी, अब मैं मैथ्यू जॉनसन बन गया हूं जी, ठीक है जी, मेरा सेट हो गया काम गॉड के साथ. Now, have you actually repented of your sins? And just this morning I was thinking about it. It's a little bit like migrating. हम सभी migrants हैं यहाँ पे. Maybe some of the children are born here, but जो बड़े हैं सारे almost इंडिया, पाकिस्तान, फिजी से आए हैं. आप देखिए, हम इंडिया से आ जाते हैं, बट हम इंडिया जाते रहते हैं वापस. बहुत कम होते हैं जो बिल्कुल नहीं जाते. मोस्टली लोग जाते रहते हैं कि इंडिया अंदर से निकलता नहीं. जितने मर्जी कीवी हो जाए, काला पासपोर्ट मिल जाए, है ना,
वोट कर लें नेशनल को, लेबर को, न्यूजीलैंड फर्स्ट को, तो आई थिंक स्ट्रगल ही करेंगे लोग थोड़ा सा इस बार. बट यू सी, देयर आर थिंग्स which always draw us back to India. And that's the same thing what happens in people's walk in faith. वो क्या करते हैं? चलो हम विश्वास की जर्नी में चले जाते हैं, हम परमेश्वर के राज्य को अपनाना चाहते हैं, बट हम कभी कभी थोड़ा सा बार का भी चक्कर लगा जाते हैं, हम थोड़ा सा व्यभिचार भी कर लेते हैं, हम थोड़े से यहाँ पे गलत काम कर लेते हैं, चलो फिर वापस आ गए न्यूजीलैंड में, चलो जी हालेलुया, फिर चले गए वापस. गॉड वॉन्ट्स यू टू बी अ सिटीजन ऑफ हेवन. परमेश्वर चाहता है कि आप स्वर्ग के अधिकारी बन जाओ. He wants you to cut off the tie from your sinful life. Again, I'm not talking about religion. I'm telling you to leave a life of sin and adopt a life of righteousness. आप धार्मिकता के रास्ते को अपनाओ, आप परमेश्वर के रास्ते को अपनाओ और आप पाप छोड़ दो. I'm not talking that you leave your religion. I'm saying leave your sin. That's all God is interested in. सही, हमको कुछ नहीं पता कि ये वाली बिल्डिंग में इस तरह के लोग मिलते हैं, ये वाली बिल्डिंग में इस तरह के लोग मिलते हैं. उसको सिर्फ प्यार पता है. एंड आई होप ही जस्ट कंटिन्यूज लाइक दैट, वे इट डजंट मैटर व्हाट, किस तरह का ठप्पा, वो कौन सी पिक्चर थी, पीके, कौन सा ठप्पा लगा हुआ है. इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट, राइट? बच्चों पे हमने कोई खुद लगाते हैं ठप्पे, बट ऑल गॉड वॉन्ट्स is a connection with him. But you can only be connected if your sins are forgiven. अगर आपके पाप माफ हो गए हैं. So it's time to examine your life today. आज आप अपनी लाइफ को एग्जामिन करें. It's time to do a full MRI कि हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ भी है जो हमें परमेश्वर से दूर करता है. You can be the most secretive guy. अब बड़ी परफेक्टली अपनी डबल लाइफ जी सकते हो, और मे बी आपकी वाइफ को भी नहीं पता हो सकता, मे बी आपके पेरेंट्स को भी नहीं पता हो सकता, बट यू जस्ट ब्यूटिफुली मैनेजिंग द डबल लाइफ. बट परमेश्वर कह रहा है इट्स टाइम दैट यू आर फ्री. परमेश्वर चाहता है आप आज़ाद हो जाओ. परमेश्वर चाहता है कि आप मेंटली फ्री हो जाओ उस डबल लाइफ से. ही वॉन्ट्स यू टू लीव योर वेज ऑफ सिन and be united to God. उस पेंटेकोस्ट के दिन जब परमेश्वर का रूह उस जगह पे आया and the Holy Spirit came, people were so convicted, उनके अंदर इतना कन्विक्शन आ गया और लोगों ने कहा भाई हमने क्या करना है, तू बता दे हमें क्या करना चाहिए. When the people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the other apostles, brothers, what shall we do? हमें क्या करना चाहिए? Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, मन फिरा लो, मन फिरा लो, स्वर्ग का राज निकट है संभालो. एक दिन जीवन मिट जाएगा, फिर तू बंदे कित जाएगा. दुनिया से अब ध्यान हटा के यीशु पे ध्यान लगा लो, लगा लो. मन फिरा लो, मन फिरा लो, मन फिरा लो, मन फिरा लो. That is the gospel. Repent of your sins. Turn from your wicked ways. अपने पापों से मुक्ति पालो, अपने पापों से क्षमा पालो. And I pray that you turn away from a sinful life. कई बार लोग different diets follow करते हैं. I've tried probably 50 of them. नहीं कर पाता. अच्छा पंजाबी हैं,
खाना बड़ा पसंद है, तो डाइट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. बट व्हाट इज डाइटिंग? अगर कोई बंदा अभी आजकल एक नया हम फॉलो कर रहे हैं प्लांट बेस्ड डाइट, विच इज़ ऑल अबाउट ईटिंग वेजिटेरियन एंड ऑर्गेनिक एंड होल फूड. बट व्हाट वी हैव डन इज हम थोड़ा मीट कम कर दिया, हमने बेसिकली ख़त्म ही कर दिया है, बहुत कम खाते हैं हम. सो हैव आई जस्ट changed to a vegetarian religion? I've just left having bad food. That's exactly what repentance is. आप पाप छोड़ के धार्मिकता का रास्ता अपनाते हो. आप एक गलत फास्ट फूड वाली लाइफ छोड़ के आप एक अच्छी साफ सुथरी लाइफ जीने की परमेश्वर के साथ कोशिश करते हो. आमीन. So religion cannot save you. Even Christianity religion cannot save you. I can tell you. Christianity का religion भी अगर आप अपना लोगे आप confuse हो जाओगे, क्योंकि कोई चर्च कुछ बोलेगा, कोई चर्च कुछ बोलेगा. बट अगर आप यीशु का दामन पकड़ लोगे, you can be living under a tree and you will be blessed. अगर आपने यीशु को चख लिया, the Bible says taste and see that the Lord is good. चख के देखो खुदा भला है. और अगर आप परमेश्वर को चख के देखोगे, you will start to realize he is better than religion. He is better than the Christian religion जो आपको डब्बों में डाल सकता है. But who the Son sets free is free indeed. बेटा करता है आज़ाद जिसको, वो हकीकत में आज़ाद है. मैंने अपने मम्मा से पूछा, मैंने कहा मम्मा आप क्यों यार आप क्यों यीशु मसीह के रास्ते पे चलते हो? आपने क्यों 50+ की उम्र में आपने सोचा कि आई वॉन्ट टू फॉलो द वेज ऑफ क्राइस्ट? कहते मेरे को ना डायरेक्शन मिल गई. कहते मेरे को सही गलत का पता चल गया. मेरे को पता नहीं था कि लाइफ में कहाँ जाना है, क्या सही है क्या गलत है. मेरे को एक रास्ता मिल गया. और परमेश्वर का वचन कहता है that I am the way, the truth and the life. मार्ग, सत्य और जीवन वही है. तो परमेश्वर जब आपकी जिंदगी में आता है, you will start to have the fruits of the spirit आपके अंदर. मैं आपको ये नहीं कहता कि आप यीशु मसीह को जब आप चखते हो आप मिलियनेयर बन जाओगे. मे बी योर प्रॉब्लम्स विल इंक्रीज. मे बी आपको बड़े बड़े लोगों के साथ बॉक्सिंग करनी पड़ सकती है. मे बी आपको ग्रीफ का भी सामना करना पड़ सकता है. मे बी यू माइट हैव टू एनकाउंटर थिंग्स विच यू माइट नॉट हैव एवर एनकाउंटर्ड जब आप मसीह में नहीं थे. बट परमेश्वर आपके अंदर उसके फल लाता है जो कि है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम. So if someone sells you a lollipop, चर्च आओ और आप मिलियनेयर बन जाओगे, और नमस्ते, कोई बात नहीं, हमें बताया था उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं होता. All that stuff is lollipop. Doesn't work. Because then God is just an ATM. We've sold him cheap. Swipe करो, $1000 बाहर आ जाएगा. Man, that's not God. That's a transaction. डब्बे में सिक्के डाले और ब्लेसिंग ले आए. That's a transaction. God wants a relationship. Imagine अगर मेरा बेटा मेरे पास ऐसे आए, पापा मैं आपको हग्गी दूंगा अगर आप मेरे को $100 दोगे. और मैं शायद दे भी दूंगा हग्गी के लिए. But inside I would cringe. यार मेरे बेटे को मेरे पैसे से मतलब है, वो फिर मेरे को प्यार दे रहा है. But that's what sometimes our relationship is like with God. It is always transactional. It is always has an angle to it. And sometimes God will do things for us even because He loves us. Even when we come with selfish motives, He would probably still do things for us. But देखिए, जिंदगी छोटी है. With Tubby, it's a reminder, life is a vapor. 14 साल की जिंदगी he lived, beautiful life.
मेरे को बिंदु जी बता रहे थे, कुम्यू में एक कारपोर्ट से उसको पिक किया amongst multiple dogs, and then he lived a beautiful life. But that's how God's chosen you. जैसे ये टबी को ढूंढने गए, वैसे ही परमेश्वर हमें ढूंढता ढूंढता आ गया. हमारे दरवाज़ों पे वो खटखटाता है, Will you let me in? क्या आप मेरे को अपनी ज़िंदगी में आने दोगे? It's the same thing. It wasn't us looking for God, it's God looking for us. Amen. तो परमेश्वर हमारा पिता है. 100 years from now, none of us will be here. And if you will be, you'll probably be in the Guinness book. Or maybe हमारे बच्चे 150 साल तक जिए, मैं तो कहता हूँ. But most likely 150 years लगा लो, none of us will be here. So what we do in this life matters. और अगर हम अपनी self focused life जिएंगे, everyone does that. But try living for God. Amen. यीशु मसीह की जय. God bless you all. Let's just quickly say a prayer and then we will have the Grover family up to say a few words for Tubby. सभी अपनी आंखें बंद करें. धन्यवाद परमेश्वर, हम शुक्र करते हैं खुदा, आज का वचन सभी के दिलों में घर कर जाए खुदा. जो भी नीड्स लेकर लोग आए हैं खुदा, and especially things which are deep and personal and emotional, which they might not have shared with anyone, I pray that you minister to them at the point of their need. जहाँ पे उनको ज़रूरत है, आज आपका शिफा वाला हाथ उनको छुए और चंगा कर दे यीशु के नाम से. There are people here, someone who's about to go into a deep depression. And I speak to you in the name of Yeshua that you will live and not die. You will live and not die. मैं यीशु के नाम से आपके ऊपर यीशु की आशा डिक्लेयर करता हूँ. For the God of all hope today gives you life. Today gives you life in the name of Jesus. I pray for everyone who's struggling with physical ailments, जो diseases से struggle कर रहे हैं. Maybe they might have received a report which wasn't ideal. मैं यीशु के नाम से आपकी शिफा उनके ऊपर डिक्लेयर करता हूँ. And we believe their reports will change. मैं शुक्र करता हूँ परमेश्वर कि जिन घरों में कलेश है परमेश्वर, यीशु की शांति उनके घरों में आए. I pray for marriages in this room. I pray that you heal the marriages. जहाँ पे marriages टूटी हुई हैं परमेश्वर. Maybe people are living in the same house, but they might as well not be living in the same house because they're living as strangers. I pray that you heal their marriage. I pray that they will go back to the time where they fell in love. परमेश्वर आप लोगों के दिलों में, लोगों के घरों में अपनी शांति और अपने प्यार को लेकर आओ परमेश्वर. आपका प्यार हर एक घर में आए. खुदा है मोहब्बत, मोहब्बत खुदा है. God is love, and that love He wants to manifest in your families. बच्चे और माँ बाप में प्यार बने परमेश्वर. Husbands and wife, I pray for all the marriages, especially मेरे मन में परमेश्वर दोबारा दोबारा डाल रहा है. There are marriages which need healing. You just need to get out and go for a holiday. It's a random word, but you just need to leave this rut and get off the hamster wheel and go and spend time with each other. I pray that God heals your marriage. परमेश्वर आपकी मैरिज को हील करे यीशु के नाम से. धन्यवाद परमेश्वर. Thank you, Lord. There are people here who came with spiritual needs, परमेश्वर. There are people here who might have had demonic attacks. I bind that spirit in the name of Yeshua. You might be encountering things in your house which are not normal. And I speak to those things. अगर इन सारे words में से आपको कोई भी word relate करता, please come and speak to me after the service. In the name of Yeshua, I speak to that demonic force in your house. Let it go and never come back in Jesus' name.
यीशु के नाम से आपके घर पे मैं आज़ादी बोलता हूँ, मैं स्वर्गदूतों का डेरा बोलता हूँ आपके घरों के ऊपर। मैं शुक्र करता हूँ परमेश्वर कि आप लोगों को चंगा कर रहे हो, आप लोगों की मैरिजेस हील कर रहे हो, लोगों की फैमिलीज हील कर रहे हो। एंड आई थैंक यू गॉड फॉर अ हार्वेस्ट ऑफ सोल्स। आई प्रे दैट पीपल विल फाइंड यू, और लोगों को अपने पिता की जानकारी होगी खुदा। आई प्रे that they will get united to their Father. In Jesus' name, amen. यीशु मसीह की